Well, today's topic is again, I'm just a little bit a brief history with the branches. Where branches of Khan. Okay, yes. These are the branches of accounting. Can you just repeat that behind me? What are the branches of accounting? What are those? And the branches of accounting are financial accounting, Good. Financial, financial accounting, and then cost accounting, cost accounting, and the third one, management accounting. management accounting. Okay. These are all accounting. So, can you just give me a little bit overview of financial because we were doing cost and management as well, but it was so quick. I guess I should repeat it or you know everything. Just tell me. Yes, ma'am, I know it. Okay, that's good. So, what is the financial accounting? Financial accounting shows us the profit or loss and the financial position of the business. Exactly. I'm writing here about financial accounting. What financial accounting tells us. Let me change the color and then you will easily come to know about what financial accounting tells us. So financial accounting tells us simply, did we earn profit? The question is, did we earn profit? Okay. Mm, Profit. The question or loss, suffers loss. This is also or suffers loss or face loss. ठीक है? दिस इज द क्वेश्चन कि क्या हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें क्या बताती है, क्या हमें लॉस हुआ है या हमारा फायदा हुआ है। ठीक है, मुनाफा, जिसको हम मुनाफा कहते हैं। ओके, और दूसरा क्वेश्चन क्या बताती है, व्हाट इज आवर फाइनेंशियल पोजीशन राइट नाउ। फाइनेंशियल पोजीशन राइट नाउ। Okay, just like a mirror. That's imagine you're holding a mirror. When you look into it, what happens? You see your reflection, the real picture of yourself as it is. Financial accounting is that mirror for a business. It records every transaction, money coming in, money going out, and at the end, it shows how well the business performed. Okay, it's like a report card as we have discussed yesterday. That is just like a report card you have in front of you. So, who can use it? Who can use it? Who are the users? Users of this branch, Then how owners. Who are the owners of this branch? Users of this branch, owners, Malik, yes, investors ma'am. who want to invest, and Creditors, even though outsiders as well, because they have to know what are major things are managerial accounting, but that financial accounting is to show someone कि आपने इन्वेस्ट करना है या नहीं, आउटसाइडर्स को बताएंगे, देन वी कैन कॉल इन्वेस्टर्स इनसाइड। ठीक है, कौन कौन इससे बेनिफिट लेता है, हु आर यूजिंग दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, owners itself, whosoever owners are, they themselves, investors, outsiders. So, because they want to see how the business is doing. Is it so? यानी हम yes, इसकी ma'am. अगर कोई इक्वेशन बनाना चाहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो हाउ कैन वी मेक एन इक्वेशन इज इक्वल टू रिकॉर्डिंग। हम रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग प्लस समराइजिंग, like just like ledgers or just like balance, trial balance, and then reporting. This is our main purpose of financial accounting.
गॉट इट? Yes, तो yesterday we have done it. अब हम अगला कॉस्ट अकाउंटिंग, बिल्कुल हम जस्ट जस्ट वी आर गोना रिपीट इट, ओके? ये हमने सिर्फ छोटा सा रेपिटेशन लेना है, थोड़ा सा रिकैप है हमारा। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? जस्ट लाइक आई हैव टोल्ड यू अबाउट द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दैट इज द मिरर ऑफ द बिजनेस। जैसे आप मिरर के सामने खड़े हैं, यू आर होल्डिंग अ मिरर एंड यू लुक इन इट, तो आपको अपना रिफ्लेक्शन नजर आता है। सो व्हाट इज द कॉस्ट अकाउंटिंग? इफ विल गेट थ्रू, गो थ्रू विद द सेम एग्जांपल, so that is the detective of expenses, ठीक है? who is cost who what is cost accounting? ये डिटेक्टिव होता है, जस्ट लाइक यू नो अबाउट द डिटेक्टिव्स, उनका काम क्या होता है? yes, ma'am. डिटेक्टिव ऑफ एक्सपेंसेस, ठीक है? एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, कैसे कैसे किए जा रहे हैं, ये इसको डिटेक्ट करता है, ठीक है? जैसे every business wants to know how much does it actually cost to make my product। अब हम इस मामले में कि हमने कितने पैसे लगाने हैं, एवरी ओनर, अगर आप ओनर ऑफ अ बिजनेस हो, बिकॉज वी आर स्टूडेंट ऑफ अकाउंटेंसी, सो हम समझ सकते हैं कि वी आर एक्चुअली ओनर ऑफ अ बिजनेस, सो वी स्टडी अबाउट द अकाउंटेंसी। तो कास्ट अकाउंटिंग क्या होती है? we definitely, if we want to run something, some business, so we should know about actual cost to make our product, ठीक है? अब अक्सर लोग कहते हैं इतने पैसे लग गए, लेकिन ये तो रफ इमेज होता है। हमने क्या करना होता है, उसका एग्जैक्ट इमेज, एग्जैक्ट पिक्चर लेनी होती है। सो दैट्स वेयर कॉस्ट अकाउंटिंग कम्स इन, like a detective who finds out where every rupee is going. It helps the business to control its expenses. What it helps the business control its expenses, कहाँ से चीज कम मिल रही है वहां से जाके हम खरीद लेंगे, ठीक है? एंड अवॉइड वेस्ट, हमारे पास जो चीजें आ रही हैं उसको हमने वेस्ट नहीं करना, वी हैव टू फुली यूटिलाइज दोज ऑल थिंग्स एंड फिक्स प्राइसेस प्रॉपरली, ठीक है? ये कॉस्ट अकाउंटिंग का मेजर मकसद है। इट्स लाइक अ शेफ चेकिंग हाउ मच ईच इंग्रेडिएंट कॉस्ट बिफोर मेकिंग एनी रेसिपी परफेक्ट। यही होता है ना, इतने ओन्स डालना है, इतने स्पून डालने हैं, वन बिग स्पून, स्मॉल बिग स्पून, आपने टेबल स्पून यूज करना है, टी स्पून यूज करना है, वन कप यूज करना है। एक रेसिपी में हर चीज दी होती है ना, 2 बंदों के लिए ये है, 4 के लिए ये है, ऐसा ही होता है ना? इट्स लाइक अ शेफ चेकिंग हाउ मच ईच इंग्रेडिएंट कॉस्ट बिफोर मेकिंग एनीथिंग परफेक्ट। तो इट्स लाइक दैट। इसको कौन यूज करता है? हु आर द यूजर्स? Ma'am, managers and internal staff. हाँ, यूजर्स आर एक्चुअली मैनेजर्स एंड इंटरनल स्टाफ, बिल्कुल ठीक। क्योंकि बाहर के लोगों का इससे ताल्लुक कोई नहीं है ना, ठीक है? who use this information to plan further betterment for the business. So in short, if we will put this in equation, so cost accounting, what you can understand, this might not be included in your book, textbook. We are making ourselves, ये equations है ना, ये हम खुद बना रहे हैं for our better understanding। आप इसको बेशक अपने पेपर में भी अटेम्प्ट कर सकती हैं, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा है तो इसको हाईलाइट कर सकती हैं टू मेक बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि एक ही व्यू में समझ आ जाए कि व्हाट इज एक्चुअली कास्ट अकाउंटिंग। what is cost accounting? How much it costs to make to do something, ठीक है? What is this? It is like that, how much it costs to make or do something। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है? सो इट वाज कास्ट काउंटिंग, और हमें यूजर्स भी पता लग गए। सो विल गो फॉर नाउ मैनेजरियल, सॉरी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, अब तक हमने पहले मिरर देखा था, फिर उसके बाद हमने चेक किया कि डिटेक्टिव है। अब ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में हम क्या कहें? हु आर दे आर ब्रेन ऑफ द बिजनेस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या चीज होती है? इट्स अ ब्रेन ऑफ द बिजनेस। हमें ब्रेन, बिजनेस चलाने के लिए चाहिए ना कोई दिमाग, तो इट्स लाइक अ ब्रेन ऑफ अ बिजनेस। सो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एक्चुअली द ब्रेन ऑफ बिजनेस, ठीक? जस्ट Yes, लाइक ma'am. real brain behind every decision। आप कोई भी डिसीजन लेते हैं, हाउ यू कैन मेक अ डिसीजन? डेफिनेटली यू कैन मेक अ डिसीजन due to using your brains properly। it collects information, how your brain works। आप डिसीजन कैसे लेती हैं? आपने डिसीजन लेना है
कि you have to go for the picnic outside on a river bank. लेकिन क्या हम river bank पर जा सकते हैं? So you will have to collect the information whether it's a weekend in a very rushy area or might be it's a floody area nowadays. So you may go there or not. So you will just collect basic information. In the same way, if you are running a business, if you are doing something according to the business decisions, so what you will do, you will collect information from financial and cost accounting, because financial accounting is actually a real picture, just like your image in front of mirror, and the cost accounting is actually behind the scene, how you are showing the real picture, but you have to cut the cost or use some cost to make your business profitable. So cost accounting is also very important. So by using the financial accounting, information of financial accounting and cost accounting, then it gives, वो सारी चीजें ले लेके ना, जैसे एक खाने से जाकर दूसरे से तीसरे में कन्वर्ट हो रहा है, तो पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कॉस्ट अकाउंटिंग की तरफ डेटा ट्रांसफर, और डेटा वहां से उठाकर मैनेजमेंट के पास आ गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पास आ गया, मीन्स इट गिव्स it to the management in a useful form like budgets, forecasts, or profit plans. तो फिर क्या होगा? It's like GPS tracking, that helps the business find the right direction for future success. बिल्कुल GPS tracking की तरह आपने डाली ना अपनी डेस्टिनेशन, तो फिर आपको सीधे रास्ते पर लेगा, ये रास्ता भी जा सकता है आपके घर को, ये रास्ता भी जा सकता है आपके घर को। ये आपका भी जीपीएस है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है, दैट हेल्प्स द बिजनेस फाइंड द राइट डायरेक्शन फॉर फ्यूचर सक्सेस। आपको मदद देगा किस चीज के लिए? कि आपने राइट डिसीजंस क्या लेने हैं, बिकॉज इंफॉर्मेशन एंड डेटा कलेक्शन इज ऑलरेडी behind ड्यू टू कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, but the management accounting is the brain of the business which will decide rather you will use this way or not. So which way you will have to adopt for a successful business, for running a successful business. ठीक है? Who are the users of this management accounting? कौन यूज करता है इनको? internal management. मैनेजर्स, बिल्कुल इनको मैनेजर्स यूज करेंगे, एंड डिसीजन मेकर्स भी यूज करेंगे। ये हाई मैनेजमेंट का काम होता है, ठीक है? ये कौन करेगा? हाई Yes. मैनेजरियल पोस्ट वाले जो होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो डिसीजन मेकर होते हैं, बड़े पोस्ट पे बैठे हुए होते हैं, डिसीजन मेकर्स होते हैं, ठीक है? इनसाइड द बिजनेस, ये बाहर का काम नहीं है, एज यू आर already knowing about inside the business. Okay. So what will be its equation as well? Management accounting is equal to, क्या हो सकता है इसको हम कैसे इक्वल करें? मैंने आपको दिया हुआ भी है, that is equal to information for better decision। ठीक है? ये इन शॉर्ट, आप अपनी बुक को, अब आपने पता है आपका इस वीकेंड पर काम ये होगा कि इस पूरे चैप्टर को गो थ्रू होना है आपने, इसको कंप्लीट रीड करना है, ईच एंड एवरी सिंगल पीस ऑफ पेपर, ठीक है? आपने सबका सब करना है। तो Okay. that all are relevant to the branches of accounting. Now we are going towards the objective of accounting. अगर objective of accounting हम ज्यादा डिटेल में जाने के बजाय हम कुछ एक्रोनिम्स हैं जो मैं आपको देना चाहती हूँ। These are the acronyms. एक्रोनिम क्या है हमारी? आर पी एस आई डी सी। You will have to learn it. RPSIDC. Okay, RPSIDC है क्या? आइए चेक करते हैं। RPSIDC हम देखते हैं। R stands for, P stands for, S stands for, I stands for, and then D stands for, and then C stands for. Okay, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है? RPSIDC आप आराम से 6 ऑब्जेक्टिव्स बता सकती हैं। What are that? This is record. R stands for record. ओहो, कैप्स लॉक लगा हुआ था, चलिए। P stands for profit or loss, whatever, ठीक है? Profit, loss. K, S stand for status. What is status actually? कि आपका बिजनेस स्टैंड कहाँ कर रहा है, ठीक है? अभी हम इसकी डिटेल भी करते हैं। I stands for information.
D stands for decision and C stands for control. ये ही इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखने से ही पता लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं। पहला पहला इसका ऑब्जेक्टिव है हमारे पास रिकॉर्ड करना। सो व्हाट इज एक्चुअली टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन एवरी डे। हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हैपन इन अ बिजनेस। ये हुआ वो हुआ, ये चीज खरीदी वो चीज बेची, हमने अपने फर्नीचर लेकर आए, नहीं तो टूट फूट हो गई, डेप्रिसिएशन हो गई, बेच दिया, खत्म कर दिया, निकाल लिया। मीन्स हंड्रेड ऑफ ट्रांजैक्शंस हैपन इन वन बिजनेस इन अ सिंगल डे। सो टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इट्स द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग कीप्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ईच वन, सो नथिंग इज फॉरगेट। ठीक है, Yes, नथिंग इज sir. फॉरगॉटन, आपने कुछ भी नहीं भुलाया, आपने हर चीज आपने रिकॉर्ड कर ली। दैट इज द पर्पस, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। द सेकंड ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग क्या है, प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन करना। तो डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस एट द एंड ऑफ द पीरियड, जो भी एक साल का है, 2 महीने का है, 6 महीने का है, जितने भी आपने टाइम एज्यूम किया हुआ है कि वी विल गो फॉर डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस, 1 डे का भी हो सकता है। It's up to you. At the end of the period, we need to know, did our business make money or loss? ठीक है, Yes, अकाउंटिंग sir. आंसर्स थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो बनाते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये इसका अकाउंटिंग का मेन मकसद अगला वाला ये है। पहला मकसद है हमने रिकॉर्ड करना है ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। दूसरा पर्पज है हमारा डिटरमिन प्रॉफिट और लॉस। तीसरा पर्पज जो है वो हमारा है दैट इज स्टेटस। अच्छा, इस स्टेटस क्या होता है कि कौन सी चीज कहाँ खड़ी है। आप जैसे अपने फाइनेंशियल स्टेटस को देखते हैं, जी हम तो मीडियोक्रे फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, अच्छा हम बिलो हम वो है एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हैं, अच्छा हमारा स्टेटस तो बहुत हाई है, हम तो इलीट क्लास से बिलोंग करते हैं, हम फिल्दी रिच हैं। सो इट्स अप टू द पोजीशन, ये स्टेटस होता है। पोजीशन, स्टेटस इज अ पोजीशन, पोजीशन एक्चुअली टू शो फाइनेंशियल पोजीशन। मींस कि अकाउंटिंग प्रिपेयर करती है, क्या प्रिपेयर करती है अकाउंटिंग, क्यों हम पढ़ते हैं, हम क्यों करते हैं, टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट टू शो व्हाट द बिजनेस ओन्स एंड व्हाट इट ओज। ठीक है, कितना उसके पास है और कितना उसको देना है। ठीक, व्हाट इज अकाउंटिंग, Yes, ma'am. दैट्स that prepares a balance sheet to show what the business owns and what it owes. It's also taking a snapshot of a business financial health, कहाँ है कहाँ नहीं है। तो this is called status, किधर खड़े हैं। ठीक है, हमारी पोजीशन कहाँ है। So R is for recording, P is for showing profit and loss, S is for status, where our position of our business, and the fourth one is I is information. Yes, टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन। आपको पता है कि ओनर्स इन्वेस्टर्स, हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में चेक किया था ना, इसका यही इसके अंदर भी है। यानी इसका मकसद, अकाउंटिंग का मकसद यही है ना कि ओनर्स इन्वेस्टर्स एंड गवर्नमेंट बॉडीज वट एवर हुएवर, जिसने टैक्स लगाने हैं, जिसने कुछ आपको सब्सिडीज देनी है, तो गवर्नमेंट बॉडीज वाई दे नीड टू नो कि हमारे मुल्क में क्या चल रहा है। तो गवर्नमेंट बॉडीज should know about all the things. So owners, investors, and outsiders, rather they are government bodies or commoners, use accounting information to make decisions. ठीक है, rather we have to buy shares or not for this company. So for after taking some useful information, we can decide better. So that major purpose of accounting is also for this, that owners, investors, and government bodies use accounting information to make decisions. ठीक है, ये Yes, एक ma'am. लैंग्वेज है दैट्स बिजनेस यूज टू कम्युनिकेट विद द वर्ल्ड। यानी कम्युनिकेशन होनी चाहिए ना आपकी दुनिया के साथ, बिजनेस ओनर्स की, कि हम क्या चल रहे हैं। एंड नंबर 5 इज डी। D is decision. So to help in decision making, why we use accounting? What is the other objective of accounting? That should we open a new branch? Should we raise prices? Should we show some um sale offers or whatever? Should we invest more? Should we cut off some branches? Means accounting data guides managers in making such smart decisions. This is called decision. Okay, अगला अगला पर्पज इसका सीधा सीधा ये है। ठीक, आखिरी और मेन पर्पज है टू मेंटेन कंट्रोल। आई डोंट नो, इन द बुक आई थिंक आई हैव सीन के 4 पर्पज थे, 1 2 3 4, 4 पर्पज थे, बट द मेजर पर्पजेज आर 6। आप इसको RPSIDC से याद करें, हमेशा काम आएगा टिल इफ यू वांट टू डू BCom M.Com, जहां तक भी आपका ये आराम से बेसिक क्वेश्चन होता है। पहला पहला चैप्टर हर एक का यही होता है, टू मेंटेन कंट्रोल मींस बाय कीपिंग रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग, दैट ऑल
prevents frauds, mistakes and ensures money is used properly. कंट्रोल है ना आपका पूरा अकाउंटिंग की वजह से, क्योंकि आपने अकाउंटिंग पढ़ा है, ठीक है। Yes, ma'am. So what is the memorization trick? How you can memorize it? R, P, S, I, D, C, R is for record, P is for profit loss, S is for status, information, decision, and control. Okay? This is very easy. So what is the quick recap? Financial accounting. Main focus is records and reports used by outsiders and owners and investors. Cost accounting calculates and controls the cost and who are using internal staff and managers. Management accounting, who are main focuses, plans and decisions for the brain, that is actually the brain of business and who use it, decision makers and the top management. And what are that important कि it's not just about maths, numbers, calculations, ledgers. ये पूरी स्टोरी होती है, पूरी गाइडलाइन। अकाउंटिंग सिर्फ यही नहीं है कि कैलकुलेशंस की, जमा तफरीक माइनस की, कैलकुलेटर निकाला, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन की। अच्छा, दैट इज एक्चुअली अ गार्डियन ऑफ एवरी बिजनेस। ये गार्डियन है, जैसे हम कहते हैं ना एंजल, वो जिसने सब कुछ सही कर जाना है। तो अकाउंटेंट्स जो होता है ना, दैट इज एक्चुअली अ गार्डियन। वो गाइड करता है, वो बताता है, स्टोरी बताता है, डिसीजन मेकिंग के लिए आसानी पैदा करता है। सो दीज ऑल ब्रांचेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो थिंक अबाउट एज अ लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस, रिमेंबर, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है, प्रॉफिट लॉस, स्टेटस, डिसीजंस, मैनेजरियल्स और ये लेजर्स, ये सारी एक्चुअली लैंग्वेज है। सो यू हैव टू क्विकली लर्न अबाउट इट। चलिए, ये हमने आज का लेक्चर इसका खत्म कर लिया अकाउंटिंग का। नो विल गो टू वर्ड्स मैथमेटिक्स, ओके।